नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम ईशबान यादव है और मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका साइबर पीस टीवी की हमारी एक और वीडियो में, जहां पर हम आपको बनाएंगे साइबर सिक्योर और साइबर अवेयर। अब बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे एटीएम स्किमिंग के बारे में। सुना है नहीं सुना है कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, टेंशन लेने का। अगले 4-5 मिनट जुड़े रहिए, बने रहिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही बहुत एक्साइटिंग वीडियो। सो लेट्स बिगिन। Guys, ATM skimming is how Priya, a hard-working woman, lost all her savings trying to buy her first car for her family. So how exactly did this happen? Let us find out. So one fine day when Priya was out for some work, she got an urgent need to withdraw some money from the ATM. She searched for it and found an ATM nearby. She went there to take out the money from the ATM, unknowingly that the ATM camera was hacked by a fraudster. Everything was going well after that, until after 2 days when Priya received a message on her phone that her account has been debited with 10,000 rupees. After reading this message, she ignored it and thought that it might be a parents, that have withdrawn it for some other purpose. Mummy papa ne le liya hoga. But again in the evening, guys, her phone beeps and she reads a message that her account has been debited with, guess, 2 lakhs of rupees. That is when she becomes furious and immediately calls her parents to confirm. आपने लिया है क्या? But her parents deny that the withdrawal has been made from their side. Guys, this is the moment when Priya realizes कि वो actual में ATM fraud, ATM skimming की एक victim बन चुकी है। ये बात it's really scary, it's डरावनी है। मतलब सोचने पर भी ऐसा है कि 2 लाख रुपए, 2 lakh rupees is a lot of amount. And we have just looked at one case study. Imagine ऐसे कितने लोग होंगे जो कि किसी ना किसी तरह से हर साल, हर दिन इनफैक्ट फंस जाते होंगे। दोस्तों, अगर कुछ सेकंड्स की वजह से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो कुछ सेकंड्स हम और आप यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू बात करके साइबर सिक्योर भी हो सकते हैं। ये एटीएम फ्रॉड्स, एटीएम स्किमिंग जैसी चीजों से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या क्या हम प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं, क्या क्या चीजें, कुछ ऐसी टिप्स, छोटी सी टिप्स हैं लेकिन आपके बहुत काम आएंगी। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। आप कई बार मॉल्स वगैरह या शॉप्स वगैरह में जाते हो जहां पर एक कार्ड स्वाइपिंग मशीन होती है। वो लोग आपका कार्ड लेते हैं और वहां से स्वाइप करते हैं। गाइस, इस स्वाइपिंग मैकेनिज्म में एक डिवाइस होती है जिसका नाम है स्किमर। अगर वहां पर स्किमर लगाए तो आपका जो मैग्नेटिक टेप है जो कार्ड का, वो सारे मैग्नेटिक डिटेल्स वहां से ले सकता है एंड इट कैन इजीली हैक योर एटीएम कार्ड। उसके अलावा दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम दैट, एटीएम मशीन भी जो है वहां पर भी या फिर एक छोटा सा एटीएम कैमरा प्लेस किया जा सकता है, या फिर जो एटीएम कैमरा खुद है, जो आपको एक सिल्वर कलर का कवर देगा जिसपे आपको शायद अपनी शक्ल दिख रही हो, यू कैन सी योर फेस, दैट इज एक्चुअली द एटीएम कैमरा व्हिच कैन मे बी हैक्ड बाय सम काइंड ऑफ एटीएम स्किमर और फ्रॉडस्टर। सो हाउ टू बी अवेयर ऑफ दिस, लेट मी टेल यू। So guys, the first tip that we have is monitoring your transactions. जो आपके बैंक के ट्रांजैक्शन होते हैं उन पे ध्यान रखना। You should keep a look on your transactions, go through your statement, and in case अगर आपको कुछ उसमें anomaly दिखे, if you see a transaction that you're not able to explain, then immediately contact your bank. Guys, even in the case of credit card or debit cards that you use online, case in point, be it Amazon or any place that you may be shopping or you may be ordering some gifts, it's important to be aware over there also. Keep a look at your transaction. कुछ भी वहाँ पे अगर आपको suspicion लग रहा है तो आपकी बैंक या आपका क्रेडिट कार्ड इशूअर जो भी है, immediately report कीजिए without having a second thought. Guys, the second point is watching where you shop. Restaurants, bars, petrol pumps, these usually seem to be the places where credit card incidents happen most frequently. These are the places where you can be scammed easily as they take your card away from you. आपसे दूर लेके जाते हैं ना कि सर हाँ आपका कार्ड दीजिए, मैं आपका अभी फिर आपके पास आते हैं and they let you type the PIN. The third point that I think you should be aware of, checking ATMs before using them. At ATMs, skimmers often place a camera within the view of the keypad ताकि वो देख सके उसको to steal your PIN. These cameras are often tiny and difficult to detect. So whenever you are using an ATM, जब भी आप कुछ पैसे निकाल रहे हो, cover
द कीपैड विद योर हैंड व्हाइल टाइपिंग द एटीएम पिन। आप ऐसे बस हाथ रख लो और फिर उसको यहाँ पे आप एंटर करो। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, लेकिन बस इतना सा प्रिकॉशन, एक अपनी हैबिट बना लो। गाइस, द फोर्थ पॉइंट दैट आई हैव फॉर यू इज फेयरली सिंपल। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जब आप कोई कार्ड रीडर में अपना कार्ड देते हैं तो वहां पर आपको इंपॉर्टेंट है चेक करना कि क्या उस कार्ड रीडर में कुछ अटैचमेंट तो नहीं लगा है। हो सकता है इस तरह की डिवाइस अटैच्ड हो जो कि आपके कार्ड को नुकसान पहुंचा सके, बिकॉज आपका कार्ड मेनली एक मैग्नेटिक स्ट्राइप पे चलता है, एंड अगर वो मैग्नेटिक स्ट्रिप को किसी तरह से हैक कर लिया जाए या किसी तरह से उससे उसका टैम्परिंग की जाए तो आपकी इंफॉर्मेशन जो भी फ्रॉडस्टर है उसके पास जा सकती है। दोस्तों, गौर करने वाली एक बात, कार्ड रीडर का कीपैड भी हो सकता है। यूजुअली अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आपने अभी तक अपने कार्ड का पिन कहीं पर एंटर किया होगा तो आपने देखा होगा कि कार्ड की जो कीज है इतनी उभरी हुई नहीं होती है, लेकिन अगर कुछ लोचा है, अगर वहां पर कुछ गड़बड़ है, इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग, द कीपैड माइट बी अ बिट डिफरेंट देन यूजुअल, सो बी ऑन अ लुकआउट। जस्ट naturally take these points in your mind and you'll be easily, just cyber secured from these kind of ATM or just basic card skimming। एक सेकंड, एक इंपॉर्टेंट बात, गलती से भी किसी को भी, चाहे आप कहीं पर भी जाएं, हो सकता है वो कोई बहुत ही बड़ा मॉल का शॉप भी हो, तो भी अगर आपको कोई कहे कि सर आपकी मैग्नेटिक स्ट्रिप काम नहीं करती है, 1 मिनट दीजिए, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। वहां से निकलो, अपना कार्ड उठाओ और निकलो सिंपली। कोई बात नहीं, बाद में खरीद लेना, किसी और मेथड से खरीद लेना, कोई और सेफ एंड सिक्योर मेथड यूज कर लेना, लेकिन कभी भी किसी को क्लीनिंग के लिए अपना कार्ड कृपया करके ना दीजिए। एंड माय लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज इनेबलिंग SMS अपडेट्स। नाउ गाइस, SMS अपडेट्स हमारी रोजमर्रा का पार्ट बन सकते हैं। अगर आपने कोई भी गलती से भी या इवन जानबूझ के कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इमीडिएटली उसका अपडेट आपके SMS पे स्क्रॉल होकर आपको नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाता है। अब गलती से अगर किसी दिन, खुदा ना करे ऐसा हो, भगवान ना करे, लेकिन अगर हो जाए ऐसा, सपोज सम सॉर्ट ऑफ स्कैम हैपेंस, सो व्हेन यू गेट टू नो अबाउट इट, एज सून एज द नोटिफिकेशन पॉप्स अप, immediately block your card, get your card blocked from your bank। you can have your iMobile जो इंटरनेट जो सर्विस, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपकी जो एप्लीकेशन है, बैंक एप्लीकेशन, वहां से आप अपना कार्ड तुरंत के तुरंत फटाफट ब्लॉक कीजिए। दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। जब आपने बैंक को ऑलरेडी ट्रांजैक्शन डिटेल्स इन्फॉर्म कर दिए कि आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है एंड दिस इज नॉट डन बाय योर ओन सेल्फ, किसी और फ्रॉडस्टर की हरकत लग रही है, जब ये करने के बाद आपको cybercrime.gov.in पर भी एक साइबर कंप्लेंट डालनी है। ये इंसिडेंट रिपोर्ट करना है ताकि साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है वो आपकी हेल्प कर सके, आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको कभी जरूरत पड़े, आपको मन में कोई ख्याल आए, कोई क्वेरी आए, जो आप कमेंट्स में लिख ही रहे हैं, इसके अलावा भी अगर कुछ सीरियस बात हो, कुछ सीरियस बात शेयर करनी है या किसी सीरियस चीज पर असिस्टेंस चाहिए, तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है व्हाट्सएप का 9570000066, 957550 और 2 बार 6। ये हमारी हेल्पलाइन नंबर है। आप जब चाहें फ्रीली व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पर आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। सो दैट इज इट फ्रॉम मी टूडे गाइज। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। मैं बस इतना आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि ये बातें हम जो कर रहे हैं, इनका उद्देश्य, इनका मेन मोटिव ये नहीं है कि हम आपको डरा के सिखाएं, ये है कि हम आपसे एक वार्तालाप करें, एक बातचीत करें, एक कम्युनिकेशन जनरेट होगा। इसलिए आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी थॉट्स कमेंट कीजिए। आप किस किस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी हमको जरूर बताइए, क्योंकि हमको भी एनकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलती है। लाइक कर देना अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम ईशवान यादव है और मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।